Okay, everyone. So let me explain you today's trade. Hope you all doing well, and what the reason behind this today's trade. And you can check my trade on Twitter. Link you will get in the description. Okay. So let's switch to 8 hour time frame. Okay. Why I'm looking for sell on USD. Because most of you guys looking for buy entry, you're thinking that there's a bullish trend, so you should have to go for buy entry. But why I'm looking for sell, let me explain. Okay, if you check this candle, okay, if you check this candle, next candle, this bullish candle close under the range, okay, next candle bearish close under the range, okay, next candle didn't break and close above the this candle high. So it means that range got activated and we can go for sell opportunity. Also, if you check on weekly time frame, if you check on weekly time frame, we have higher time frame SMT divergence. Okay. Also, if you go to DXY, okay, we all have range got activated. Okay, if you mark this candle low and this candle high, so we have range got activated on DXY also. So what is the mean? That price want to go up on dollar and price want to go down on GBPSD or UDSD. So you have to look for sell opportunity. Okay, because range got activated. Also, the most important thing, if you check, this is the NDOG, new day opening gap. So whenever you see there's a new day opening gap, you have to mark that gap because that gap work like a magic. Okay, means most of the time it's 90% of the time price always fill the gap and then it will go up or down whatever. Okay, so let me explain you where I took entry. So first of all, because of news, I got SL hit. Let's say this is the 3 a.m. Okay, if you, let me forward this so it will be very helpful. 3 a.m. Okay, so why this thing is all right. So please ignore this replay. So now if you why this I think this is the new update of TradingView. Okay, so if you check here that this candle, this is the 2 a.m. candle, is the 1 a.m. candle. 2 a.m. candle, sweep previous candle high and closed bearish, strong bearish. Okay, but if you check GBPSD, it didn't sweep previous candle high. So what does it mean? That price have uh, SMT plus the this range here we have turtle soup. Okay, so there's a high probability that price will go down. Also, we have 8 hour range activated on higher time frame, so there's a high probability that price will go down. So what I did, I wait for 3 a.m. candlestick, sorry, 3 a.m. candle, and let's see how candle react and where I put my stop loss and how I got stopped out today. So let me start this. Okay, let me on PO3. So this is the 3 a.m. candle started right here. Okay, first it uh
it closed bearish. So what I did, I wait for next candle. So there's a lot of volume because price is ranging and also we have a news. So that's why I didn't wait for 15-minute candle to close because on 15-minute candle there's a news. So I took a buy, sorry, or I took a sell here, and my target profit is this previous day low. Okay. And then what I did, I took a sell here and my stop loss above this candle. Okay. And then what happened, you can see it went down, but because of news it went up and I got stopped. Okay, now the second, because of my bias, I I truly believe that price will go down. Okay, that's why I wait for opportunity. Then what I did, I wait for 4 a.m. candle. Okay, the 4 a.m. candle started right here. So what I did, I wait for if we got any turtle soup or this 4 hour candle, when is this 4 hour candle start going to flip, then we will go for sell. So I wait for first 15-minute candle. Okay, so as this 15-minute candle close, I took a sell and stop loss above this candle high. You can put stop loss above this range also. And then I took sell here, and then you can see price and down. So if I ask you that where I close my position, I close my position right here. Why? Because if next 4 hour candle want to go up, first it will create a wick and it will activate the range, and then it will go upside. And if you see here, I took exit. The entry and exit point, you can check my Twitter also. So so 8 hour range got activated. We got confirmation. We got 1 hour confirmation. Then we got candle confirmation, and then we took a sell. Okay, this is the trade, and I do believe that price will continuously go down. Okay, maybe this is the retracement, but I do believe that price will go down to sweep this low. All right, so this is the video for those who understand English, and now it's time to create a video for Hindi. Okay, for my Indian friends. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो, जैसा आपको सबको पता है कि कैंडल रेंज की हाई एंड लो मार्क किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एच 8 आवर की रेंज देखें, तो हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, और ये एक बुलिश कैंडल। सो अगर हम लोग देखें तो सारी कैंडल जो उसके बाद बनी है वो सारी अंडर क्लोज हो रही है रेंज के अंदर। सो इसका क्या मतलब होता है, जब प्राइस, आप देखो कि कोई कैंडल है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की कैंडल देखो और लोअर टाइम फ्रेम की कैंडल को साथ में आप रिलेट करो। फिर अगर आपको ये दिखता है कि कैंडल अंडर रेंज क्लोज हो रही है, तो ये क्या होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस ने रेंज एक्टिव कर दी है, और रेंज एक्टिव करने के बाद वो नेक्स्ट कैंडल की जो छोर है या नेक्स्ट कैंडल का जो लो या हाई है उसको स्वीप करने के लिए या उसको डॉल को लेने के लिए वो जाएगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी होती है और ऐसे ही मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखो कि 8 आवर की रेंज सारी कैंडल्स जो है अंदर क्लोज हुई है। ठीक है, अब आप अगर 6 आवर में देख लो, और एग्जांपल देखते हैं 6 आवर में देखो, अब क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि यार
ये कैंडल है और ये कैंडल बुलिश क्लोज हो गई, मींस इसके ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, लेट्स से ये कैंडल है, ठीक है, और ये कैंडल है और ये कैंडल, तो हमेशा क्या होता है कि अगर नेक्स्ट कैंडल विक अप हुई है और क्लोज अंडर द रेंज हुई है, तो हम क्या लेंगे कि नेक्स्ट वो जो हाई होगा कैंडल्स का, ये लोअर टाइम फ्रेम में बता रहे हैं, जो कैंडल्स का हाई होगा वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। मींस कि यहाँ पे अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम मानेंगे कि हाँ ये रेंज फेल है और हमें बुलिश के लिए देखना चाहिए क्योंकि प्राइस मोमेंटम बुलिश में है। अब आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। फिर नेक्स्ट कैंडल देखो तो इसने भी क्लोजिंग नहीं दी। तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैंडल के ऊपर और कैंडल के नीचे। तो अभी चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। सेम फॉर डी एक्स वाई। अब अगर आप डी एक्स वाई में देखो, दोनों तरफ देखो, अगर हम लोग इसको रेंज मार्क करें तो ये एक रेंज है और ये लेट्स से ये रेंज है, ठीक है। ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि सारी कैंडल जो है अंदर में क्लोज हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि रेंज एक्टिव हुई है। कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे सेल लेने के लिए, बिकॉज रेंज गॉट एक्टिवेटेड, रेंज एक्टिव हुई है। और हमें एनडीओजी को टारगेट रखना चाहिए क्योंकि हमेशा गैप गैप जो होता है वो ऐसा मैग्नेट काम करता है, चुंबक काम करता है। आप अगर आपने इंडियन मार्केट में भी देखा होगा तो कभी कभी आप निफ्टी 50 देख लोगे तो उसमें भी होता है, वैसे मतलब मेरा कभी होता नहीं इंडियन मार्केट में ट्रेड करना। तो ये एक तरह का मैग्नेट काम करता है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वेट करेंगे 3 AM का। 3 AM क्या होता है ना कि लंदन सेशन की ओपनिंग होती है। आप इसको यूटीसी -4 कर लोगे तो 3 AM यूटीसी -4। अगर इंडियन टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप एक सॉरी 12:30 बजे, हाँ 12:30 पे आपको ये टाइम टाइम जोन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हुआ कि हम लोग लंदन सेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि सेशन जो होता है वो वॉल्यूम लेकर आता है मार्केट में। और जब आप मार्केट में वॉल्यूम होगा, प्राइस मूव करेगा, लेट्स से प्राइस मूव ही नहीं करेगा तो फिर आप प्रॉफिट कैसे कैसे बनाओगे? ठीक है। लेट्स से आपने सेल लिया और प्राइस नीचे ही नहीं गया तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि वॉल्यूम का वेट करना चाहिए कि हाँ मार्केट में वॉल्यूम आए फिर हम लोग उस पर ट्रेड करें। अब क्या हुआ, ये 3 AM की कैंडल है। हम लोग इसको यहाँ पे रिप्ले लगा देते हैं और ये पता नहीं क्यों ये लोगो आज इन लोग को दे रखा हुआ है। वैसे जनरली ये लोग देते नहीं है, पर कोई बात नहीं। थोड़ा सा दिखेगा नहीं ध्यान से तो फिर उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, ठीक है। हम देखते हैं इसको कैसे इस लोगो को हटा सकते हैं। ओके। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो 2 आवर की कैंडल में क्या हुआ है कि इसने टर्टल सूप यहाँ पे क्रिएट किया है और यहाँ पे क्लोजिंग बेरिश दिया। सेकेंड, आप अगर जीबीपी यूएसडी में देखो तो इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप नहीं किया है और नीचे ही क्लोजिंग दे दी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हमें एसएमटी डाइवर्जेंस मिला है। ठीक है। अब क्या हुआ, हमें क्या करना है कि 3 AM के वेट करना है। 3 AM के वेट क्यों करना है, क्योंकि उस टाइम लंदन सेशन ओपन होता है और लंदन सेशन जब ओपन होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम आता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ठीक है। सेम चीज हम लोग कह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8 आवर की रेंज देखा हमने, एक्टिव देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, 2 आवर पे आए, 2 आवर पे आया, हमने देखा कि हाँ यहाँ पे टर्टल सूप बना है, रेंज एक्टिव हुआ है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जो हायर टाइम फ्रेम में काम करते हैं हम लोग उसको लोअर टाइम फ्रेम में भी अप्लाई करना है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कैंडल स्टार्ट होते ही यहाँ पे टर्टल सूप क्रिएट कर दिया। ठीक है। हम लोग PO3 का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि PO3 हेल्प करता है कि जब भी हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस लेट्स से प्राइस विक क्रिएट करता है, ठीक है। तो PO3 क्या करता है, आप जब लोअर टाइम फ्रेम में भी होते हो तो वो आपको एक गाइडेंस दे देता है कि हाँ हर टाइम फ्रेम में 1 आवर में कैंडल ने विक क्रिएट किया है और अब क्रिएट करेगी बॉडी। ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी एंट्री बहुत पहले ही हो जाती है कि मतलब जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मेरा एंट्री बहुत पहले हो जाती है और हम देख लेते हैं कि हाँ अगर टर्टल सूप क्रिएट किया है तो फिर ये प्राइस नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे हम आपको कंफर्मेशन की एंट्री बताते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने कैंडल को स्वीप किया, अब नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्लोज हुई। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे अपना स्टॉप
स्टिल स्टॉप लगा देना और प्राइस को मूव होते देखना। ठीक है। अब आज क्या हुआ कि जस्ट बिकॉज ये वैसे मेरा टीपी यहाँ नहीं था और नीचे था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, तो इट्स ओके, मतलब ये हमेशा नहीं होता। बिकॉज ऑफ न्यूज प्राइस रिवर्स हो गया और यहाँ पे मेरा एसएल हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि सेकेंड एंट्री मेरी कहाँ पे थी और हमने सेकेंड एंट्री क्यों ली थी। तो ओवरऑल बायसिस जैसे कि आपको पता है बेरिश। ठीक है। तो प्राइस का ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बैठता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, यहाँ पे 4 AM का वेट किया। और 4 AM अगर आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे 4 AM शुरू हुआ और जैसे ही कैंडल फ्लिप होना शुरू हुई, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो, हमें चाहिए टर्टल सूप। ठीक है। यहाँ पे हमें टर्टल सूप मिल गया, प्लस ओवरऑल बायस बेरिश है। और जब हायर टाइम फ्रेम बेरिश होता है तो लोअर टाइम फ्रेम की रेंज एक्टिवेट होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। बहुत से लोग क्या करें यहाँ पे, उनका ये होने लगता है कि यार यहाँ पे अंडर क्लोजिंग दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, बाई कर लें। कभी भी ऐसा नहीं करना, हमेशा क्या करना कि बाई बायस जो है उसको फॉलो करना और उसके हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करना। ठीक है। तो जब यहाँ पे ऐसा हुआ तभी हमने क्या कहते हैं, सेल यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे लगा दी। और कंफर्मेशन में आपको बताते हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी आप देखो बेरिश क्लोज हुई। ठीक है। तो क्या आप करो यहाँ पे, सिंपल सा टारगेट रखो और थोड़ा सा बफर दे दो। यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो क्योंकि जियो और यू दो ऐसे पेयर होते हैं जो एक साथ मूव करते हैं। और आप टारगेट इसका लो लगा सकते हो। अब ये भी हम बताते हैं कि मेरी एंट्री इसके पहले क्यों हुई। अब क्या हुआ, आप देखिए, हाँ प्राइस नीचे गया, फिर ठीक है। अभी क्या हुआ, आप सबको पता है कि जो 5 AM होता है, 5 AM पे क्या होता है कि न्यू 4 आवर की कैंडल शुरू होती है। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि जब न्यू 4 आवर की कैंडल शुरू होती है तो प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, विक बनाता है, रेंज एक्टिव करता है और फिर ऊपर जाता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस ऊपर जाएगा, मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि प्राइस इस ड्रॉडाउन लिक्विडिटी को हिट करेगा जो 8 आवर की रेंज है, और तब फिर ये ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरी जो एग्जिट थी वो यहाँ पे थी। ठीक है। और वो भी हम बताते हैं मेरी एग्जिट यहाँ पे क्यों थी। बिकॉज मेरा जो फोकस रहता है वो 1:2, 1:2.5 या 1:3 आ रहता है। तो अगर वो रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल जाता है तो मेरी एग्जिट हो जाती है। यस, यू कैन ऑल्सो वेट फॉर दिस ड्रॉडाउन लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल बायस है वो बेरिश है, 8 आवर की रेंज एक्टिव हुई है, तो फिर बिल्कुल ये नीचे जा सकता है। लेकिन मेरा जो रूल है वो रूल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 आवर की अगर हम लोग कैंडल ओपन करें और इन सबको हम लोग डिलीट कर दें, इसको भी और इसको भी। अब आप देखो, हमारा बायस तो बेरिश है, डॉल यहाँ पे है। तो यहाँ पे एग्जिट लेने का जो सेंस है वो ये है कि प्राइस में भी यहाँ से रिवर्स हो सकती है। क्योंकि लुक, हमें क्या करना है कि प्राइस से लड़ना नहीं है, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ मूव करना है और मार्केट से के साथ फ्लेक्सिबल रहना है। ओके। तो जब 4 आवर कैंडल शुरू हुई तभी हमने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। क्यों? क्योंकि मे भी यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और 1:2.5, 1:3 आर मेरे लिए बेस्ट है प्रॉफिटेबल होने के लिए। और इसी रिस्क रिवॉर्ड से मेरे मतलब पे आउट्स आते हैं और फंड चैलेंज पास होते हैं। तो इट्स बेस्ट, डोंट गो फॉर 1:10, 1:100, 1:500। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। और मूव हो जाने के बाद बताना बहुत आसान होता है। तो इसलिए तो यही था वीडियो। और नेक्स्ट टाइम से मेरा ट्राई यही होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाते हैं। मेरे हिंदी बनाने का वीडियो, इंग्लिश में बनाने का वीडियो, जो रीज़न है वो ये है कि मेरे जो 80% जो मेरे मेंटरशिप में है मेंबर, वो सारे बाहर के ही हैं।
और इंडियन बहुत कम है, तो दैट्स वाई मेरी जो मोस्टली वीडियो है वो इंग्लिश में होती है। लेकिन ये है कि व्हेन यू जॉइन मेंटरशिप, उसमें आप हिंदी में बात करो, हिंदी में पूछो, लाइव पे हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं। तो इफ एनीवन वांट टू जॉइन, आप मतलब टेक्स्ट कर सकते हो ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, तो उसमें मेरी तरफ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या है, क्यों है, और किस तरह से मेंटरशिप अलग है, उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही हम बनाएंगे। और बाय बाय।